हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज बी सीटेड। अपने अपनी सीटों पे बैठ जाएं। Welcome all of you to Mentors Group first session for our staff training for the office management and your career goals. This is our today topic. My name is Professor Muhammad Irao, and you can call me Rao, it's enough for me. And I'm traveler, I'm coach, I'm life coach, I'm skills coach for the soft skills. And you can say I am sales of the entrepreneur. And this slogan today will describe my personality and my aim of life. And if you will synchronize yourself with the same slogan, definitely you will also become a part of our group. There are two ways to become part of this group. One is for long term, and the second is short term. As a short term participant, you can take this training and you can find your destination, you can go anywhere, and it is free of cost. There is no charges for this very important session and training for all the young graduates, business minded ladies and gents, entrepreneurs. This session is very important for those. Even I am giving you the authority that you can use it for your relatives, for your friends, and you can forward it. You can share this on your WhatsApp or your Facebook so that everybody can get the benefit of this. So as I was telling you about that, there are two procedures. One is short term, that you can take the training and you can go. There is no obligation that you should join us. Maybe you'll be selected for the job, maybe you'll be not selected, but this session will, I am damn sure that you'll remember it forever, for all over of your life. You can follow it, you can understand it, and you can take the benefit of this. Number one is this option, short term. The long term aspect is that we will provide you all these things and we expect your part. Once you will understand all these things, that today I will give you the briefing of that. Even if you don't understand any single word in English, please raise your hand. I will explain you in Punjabi, Urdu. Your understanding of these content is 100% required. Because if you not understand our project, if you not understand our vision, then it will be not possible for you to cope with the system, to get your result and to get your appointment letter and to become the part of this organization. This is very, very important. So we will give you all these things, and we expect from your side only these things. And if you be serious, then the result of these both things today I will write here, and you will speak. This is your IQ test today. You will tell me and I will write one by one. You will speak out. I will write here which will be the correct answer. I will write here and I will give you the prize. There will be a prize for you, and it will be very big surprise prize for you, because I want one person, all of you, out of all of you, who is most intelligent person in the group. And the word here I want from your side, it will be spoken out from my tongue today during the lecture. So you will have to pick the word. I will use this word many times because I love this word, and everybody here is due to this word, which I will write here. So can I ask you one question? Yes. Is it just a single word? Or Single one word. We are here. If it will be not here, maybe you will not come tomorrow. Maybe I will not come tomorrow. Nobody travel if this word is not there. If this word is not in their life, they don't move. They don't go outside even for 1 day, 1 year, 1 month, one life. Life is dead after this. So it's just IQ level test from your side, because I have written this in my book. This is very most important for me. Everybody is running on the road for this. This is a clue for you. Now, those people, they will be for long term join us, our group, our company. We will give this, and ultimately we want this from you. So the result of both things will be here.
and you will be bound with us forever. Not for 1 month, not for 1 year. Forever, I am telling you, forever. Till death, even after death. Your kutuba on the cover, there will be a written that dedicated or patterned by this group. We will be in your funeral ceremony. I am damn sure you will be also in my funeral ceremony. This is the real bondage of the friendship or the relation. If somebody remember you even after death, it means there is something. If you are alive, you are smiling, you are sitting, you are having a coffee, tea, dinner, what is the big deal? Maybe some mafadat are there on the both side or one side, and you are foolish or other party is foolish. But after some time the relation is broken. Both are separate. But here we are trying to make the long-term relation. This is my wisdom to give you the lecture. I don't want money from you. Miyan Sahab and me both don't have any written agreement. Miyan Sahab aise hi? We don't have any agreement and we are partners. Why? You know, there is something out of this world that make us join. You understand? Maybe you know, I have big office in Qatar, I have my own company, I was sitting downstairs. I came here to join this group. This is from God and we will prove you within few days. When you will attend our inauguration ceremony in Bahria, the people will come around the city. People will come from Lahore, Karachi, Faisalabad, and you will see that why they are joining us, why they are coming to us. So, you must understand each and every one word today, and if you don't understand, please ask me a question. This is very important. Our company name is, from the last 20 years, that is Mentors Group. And it has some meaning, great meaning. You know mentor meaning? Yes. It is not teacher. It is not trainer. It is not instructor. It is not your father. It is not your relative. It is not your friend. It is the person who take your finger in hand and take the responsibility and make you get your destination till end. He is a mentor. And I want, it's my wish that all of you should become mentors. I will not make you employee. I will not offer you any job. I will not offer you any short-term planning. If you become the group member for the mentors, means you are mentors. Then the fee or the reward for this lecture is that you will have to train the other mentors. You will have to train the other people. That is my reward. You understand the meaning of mentors? Yeah. That you will become successful person. And to inspire other persons? Yes, and you will inspire the other person and you will try to make 100 people at least. And those 100 people will join your network. So you will be the leader of at least 100. Remember this figure. I love this figure. This is very interesting. -1. I like this word. There are another lecture of 99. Why there are Asmaul Husna, the name of God is 99, why the name of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is 99. This is a full theory, science. We'll invite one professor from Lahore and he will give you the lecture on this, what is the theory of 99. If you just recite 99 names in the beginning of the day, it means that you are praising God by all the Safati names. And the day will be full of blessing for you. Sir, sorry, I'm not getting this point. Why you are deducting 1 out of 100? Because It's it's just my 1% out of my 100. theory. It's Maulana Room theory. When you say man, Okay. you negate the word universe. There is no man. We. Okay. The philosophy is अपने आप, चलो उर्दू में बताता हूँ, बड़ा मजा आएगा आपको सुन के. जब तक आप अपने आप को माइनस नहीं करोगे ना, Out of the rest of the world. you can't enter in the world of other person. And other person are universe. You cannot reach God until आपके अंदर प्राउड ये रहेगा मैं कुछ चीज हूँ, मेरी जायदाद है, मेरा ये प्लाजा है, मेरी ये डिग्री है, मैं एमफिल हूँ, मैं सियासतदान हूँ, मैं इमरान खान हूँ, मैं नवाज, ये जितने भी मैं वाले लोग हैं ना, इनको गालियाँ देते हैं लोग. मौलाना रूम की आप पोइम्स पढ़े सारी, आई एम फैन, ग्रेट फैन ऑफ हिम, और मैंने उस पर रिसर्च की है, मैं आपको उस पर कभी लेक्चर दूंगा कि मौलाना रूम ने किस तरह से जिंदगी सफर किया और उन्होंने जो मौलाना रूम ने मसनवी लिखी है उसमें क्या हिकमत है, उस पर हम किसी दिन और बात करेंगे. मैं को माइनस किया मैंने.
अपने आप को माइनस कर दो। 99 नेम्स अल्लाह के जो है वो सिफात अल्लाह ताला अपने बंदों में देखना चाहता है। बेशक। तो ये है इसका जो खूबसूरत पॉइंट है कि अपने आप को मैं करें, कभी भी किसी से प्राइड ना किया करें कि मैं ये चीज हूं, कुछ भी नहीं। इंसान पानी का बुलबुला है, उसके जो अमान है, उसका जो किरदार है, उसकी जो यहाँ पर लिगेसी है जो वो छोड़ के जाता है ना, वो है असल चीज। उसके लिए मेहनत करें आज से, उसके लिए आज से हम मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए मैं आज आप लोगों को तैयार कर रहा हूँ। ये लेक्चर कभी नहीं भूलेंगे आप, आपको शेयर करना अपने तमाम रिलेटिव्स में। तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा था आपको कि मेंटोर्स जब आप बन जाते हैं, मेंटर के ग्रुप में जब आप शामिल हो जाएंगे तो आप अल्लाह ताला हम आपको सनद देंगे। ये लेक्चर जब खत्म होगा महीने के बाद, आई विल बहुत हम अच्छे लोगों को बुलाएंगे और एक समनी करेंगे और आपको स्टेज पे बुला के सर्टिफिकेट्स देंगे। यू आर आवर रिकॉग्नाइज्ड मेंटर, वी फील प्राइड। हम बहुत फख्र से आपको स्टेज पे बुला के कि आपने हमारे लेक्चर सुने पूरे महीने और अब आप हमारे बेहतरीन मेंटोर्स हैं। बिजनेस तो बहुत बात की बात है, पहले मेंटर बनाएंगे आपको, जो आपके पास एक दफा आ जाए और आपसे कोई इंटरव्यू करके चला जाए और वो आपका फ्रेंड ना हो, वो आपको फिर दोबारा से कॉल ना करे, वो दोबारा आपके पास आए ना, वो आपके सारे प्रोग्राम को समझे ना, तो फिर आपने टाइम वेस्ट कर दिया ना। हमने ऐसा नहीं करना। हमारे पास अगर 10 लोग डेली आएंगे तो वो 100 बनेंगे खुद ब खुद, वो 1000 बनेंगे। ये हमारा कस्टमर केयर का एक नई फिलॉसफी होगी। दुनिया तो अखबारों में ऐड देती है, टीवी पे स्टाइल लगाती है और बहुत सारे हरबे इस्तेमाल करती है अपने एडवर्टाइजमेंट। विल नॉट डू इट, विल नॉट डू एनी सच ए ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट। हमें ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी, हमने आप लोगों के जरिए अपना नेटवर्क बड़ा करना है, अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करना है। So if you're the part of mentor, then we are responsible to make you wise, and that will be possible through our wisdom programs. And what is our wisdom program? Learning soft skills. Yes, very good. कल आपने पढ़ा होगा तो आपके ज़हन में याद रहेगा। आप सब लोगों से कभी भी आइंदा पूछे तो आपने फौरन हाथ पकड़ के ये बोलना है कि सर we can get our wisdom through our soft skills program, जो कि तकरीबन 20 के करीब है। 20 प्रोग्राम हमारे ऐसे हैं जो आप लोगों ने यहाँ पर 1 by 1 करके और उन प्रोग्राम को सीखना है, और उन प्रोग्राम को सीखने के बाद these are our programs। ये सॉफ्ट स्किल्स के सारे प्रोग्राम्स को आपने एक एक करके हासिल करना है। एक एक प्रोग्राम को आपने पढ़ना है, एक एक प्रोग्राम की डिटेल मैं आपको दूंगा, एक एक प्रोग्राम का ब्रोशर आपको दूंगा, एक एक प्रोग्राम की वीडियो हम बनाएंगे। हर प्रोग्राम की वीडियो बनेगी और हर प्रोग्राम की वीडियो को आप अपनी लाइब्रेरी में रखेंगे। जब आपको जरूरत हो, जब आप किसी से बात कर रहे हो, जब आप जो है ना किसी स्टूडेंट से बात कर रहे होंगे, अपने किसी क्लाइंट से बात कर रहे होंगे, तो आपको पता है कि इस बंदे को मैंने कौन सी कोर्स की वीडियो फॉरवर्ड करनी है। हर प्रोग्राम की दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इसको आज से, जैसे आज हमारी पहली वीडियो बन गई तो इसको आपने हमारे चैनल पे आज फ्लोट कर देना। आज हमारे तमाम सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगी। तो आपका काम है कि हमारे सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो है आर्ट ऑफ थिंकिंग, सोचने का फन। हमारे यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो रोड पे बेचारे सुबह मशीन की तरह निकलते हैं, ऑल द वे ऑल द डे दे आर ड्राइविंग जस्ट लाइक अ मोटर बाइक। कार और मशीन की तरह अपनी जिंदगी पूरी को गुजारते हैं। सुबह जाते हैं, शाम आते हैं, कपड़े धोते हैं, इस्त्री करते हैं, जाते हैं ऑफिस में, जाते हैं 18, 20, 25 हज़ार के लिए, एंड दे गॉट द डिजीजेस। और 40 साल से पहले उनको कोई ऐसी बीमारियां लग जाती है, उसके बाद वो किसी काम के लिए तो जो पैसा जमा किया होता है वो दवाइयों को लगाते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे 3 बेटियों में से 2 बेटी छोड़ के चले गए, 4 बेटों में से 3 बेटों की शादियां नहीं देख सके, और अपनी तमाम हसरतें, जिंदगी के जितने ख्वाब थे अधूरे छोड़ के वो कब्र में चले गए। तो हम आपको सिखाएंगे कि सोचने का फन भी है ना। एक सोचो तो, इंसान तो सोच के लिए पैदा है। सबसे पहले तो सुबह उठ के सोचना है आपको कि कल का दिन कैसे गुजरा, आज का दिन मैंने कैसे गुजारना है। ये फन सिखाएंगे हम आपको इसमें। आर्ट ऑफ थिंकिंग, विजन एस्टैब्लिशमेंट, नेगोशिएशन स्किल्स, सेल्स स्किल्स, ये कमाल कोर्सेज हैं। ब्रायन ट्रेसी और बड़े बड़े रिचर्ड ब्रैंसन आप जाए, वो डॉलर्स में 1000, 2000, 3000 डॉलर चार्ज करते हैं। आप लोग किए कि आपके सारे लेक्चर्स हमारे मेंटर्स ग्रुप के प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो दिस विल बी पॉसिबल फॉर योर प्रॉस्पेरिटी। विदाउट विजडम यू कांट गो टू प्रॉस्पेरिटी सेशन। प्रॉस्पेरिटी के दायरे में दाखिल हो नहीं सकते जब तक आपको वाइज नहीं हुए, जब तक आप विजडम के सारे कोर्सेज नहीं करेंगे। even you have the master degree, MPhil or PhD,
मैट्रिक और पीएचडी में मेरे यहाँ कोई फर्क नहीं है, अगर उन दोनों में वाइज का फर्क नहीं है, विजडम का फर्क नहीं है। अब दोनों में अगर आपको विजडम का फर्क महसूस नहीं करते तो फिर आपने उसकी पीएचडी का क्या करना है? अगर किसी ने पीएचडी कर लिया बायो केमिस्ट्री में, बायो साइंस में या किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी शोबे में, तो मुझे आप बताइए उसकी पीएचडी का अवामुन नास को क्या फायदा होगा? नो। और अगर एक मैट्रिक इंसान और उसने मेहनत करके और अपना कोई हुनर सीख लिया और उसने कोई चीज बना ली, या वो एक अच्छा कारीगर है, वो डेली 10 एसी ठीक करता है, वो कोई प्रोडक्टिव काम कर रहा है, सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव है, तो उससे मुल्क का फायदा, सोसाइटी का फायदा, उसका भी अपना ही फायदा। उस पीएचडी का, एमफिल का हमें क्या फायदा कि अगर वो एग्रेसिव नहीं है, वो प्रोडक्टिव नहीं है, वो कोई ग्रोथ नहीं दे रहा, वो सोसाइटी में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा और वो सिर्फ जॉब ढूंढ रहा है। वो सिर्फ ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तलाश में जहां उसको एक प्रोफेसर का टाइटल मिल जाए और टीचर में बन जाए वो, और उसको तनख्वाह मिल जाए और बस वो सैलरी लेके खुश हो जाए। तो हमें तो उस पीएचडी की जरूरत नहीं है। हमें तो उन लोगों की जरूरत है जो सॉफ्ट स्किल्स के जरिए, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग लेने के लिए अपने लिए भी फायदेमंद हो, सोसाइटी के लिए भी कारआमद हो और इस मुल्क के लिए भी फायदेमंद हो। तो ये कैसे मुमकिन होगा? विजडम के थ्रू। हम विजडम के प्लेटफॉर्म पे आपको 20 के कोर्सेज करवाएंगे और 20 के 20 कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स मिलेंगे आपको, और उसके बाद जब आप कभी इंटरव्यू देंगे या लेंगे तो आप वो डिफरेंट किस्म के इंसान होंगे। आइए देखते हैं कि विजडम से नेक्स्ट जो है प्रॉस्पेरिटी में हम कैसे दाखिल होते हैं। याद रखिएगा, जब आपको अपने वक्त की कदर होती है, जब आपको सोचने का पता चल जाता है, जब आर्ट ऑफ थिंकिंग के आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो फिर आप बगैर किसी अपॉइंटमेंट के किसी के पास नहीं जाते। जब आप सुबह निकलते हैं तो आपको क्लियर कट पता होता है कि मुझे आज किस जगह जाना है, कितने बजे तक वहां रहना है, दोपहर में कहाँ हूंगा मैं, शाम में, पूरे दिन का स्केड्यूल होता है आपके पास। और ये पहली शर्त है, ये पहली बुनियाद है, ये पहला नुक्ता है, ये पहला ट्रेट है किसी प्रोफेशन का। अगर प्रोफेशनलिज्म आप में है और आप डिसिप्लिन नहीं है, आपको टाइम की पाबंदी नहीं है, आपको डेली मैनेज नहीं करते चीजों को, तो फिर आप ना कहें कि आप प्रोफेशनल हैं। तो प्रॉस्पेरिटी के लिए सबसे पहला नुक्ता क्या है कि आपको अपने आप को टाइम मैनेजर बनाना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए आपको। सॉफ्ट स्किल्स में जो पहली चीज है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हाउ आई विल स्पेंड माय टुडे। आज का दिन मैंने कैसे गुजारना है, कल का दिन मेरा गुजरा कैसा था, उसमें कौन सी चीज काम की रहेगी जो आज मुझे हर सूरत में करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, वेरी अर्जेंट, ये चारों हम आपको समझाएंगे कि इसमें आपने डायरी पे कैसे बनाने हैं। अब आइए आगे कि प्रॉस्पेरिटी 7 किस्म की होती है। शायद आपके जहन में इस वक्त ये आ रहा होगा प्रॉस्पेरिटी सिर्फ जो है ना पैसे को बोलते हैं, ऐसा नहीं है। अगर प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, अगर सिर्फ पैसा होता है तो बहुत सारे खुशहाल लोग सुसाइड ना करते। अगर प्रॉस्पेरिटी सिर्फ घर, गाड़ी, बंगला, बीवी, आप अय्याशी जिंदगी में जो भी नाम लें, अगर उसका नाम प्रॉस्पेरिटी होता तो बहुत सारे लोग दुनिया में इस वक्त जो है ना वो जेलों में ना होते, या वो तन्हाई का शिकार ना होते, या अपनी लाइफ को जो है ना वो बर्बाद ना करते अपने हाथों से, जो पैसा कमाया उसको दोबारा से बर्बाद ना करते। तो प्रॉस्पेरिटी चीज का नाम है। प्रॉस्पेरिटी मेरे यहाँ जो मैंने अपनी किताब में जिक्र किया है, 7 तरह की प्रॉस्पेरिटी इंसान की जिंदगी में होनी चाहिए, जिसका स्टेप बाय स्टेप आपने इंप्रूव करना है अपनी। प्रॉस्पेरिटी फाइनेंशियल वेरी गुड होनी चाहिए, आपकी स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, आपकी हेल्थ की प्रॉस्पेरिटी जो बेहतरीन, आपको हेल्दी होना चाहिए। आप बिल्कुल सुबह उठे तो आपके अंदर एनर्जी हो कि आप बेहतरीन किसी जगह, अगर आपको टैक्सी रिक्शा नहीं मिला तो 1-2 किलोमीटर पैदल चल सके। व्हाई नॉट? मैंने देखा यूं सुपड़े हुए लोग खड़े रहते हैं स्टॉप पर, 1-1 घंटा इंतजार करते सिर्फ 1 किलोमीटर के लिए। मैंने देखा, आप भी ऑब्जर्व करें, 1 किलोमीटर खड़े रहते हैं और इतना वक्त जाया करते हैं। और मैंने देखा हॉलैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, बिकॉज आई ट्रैवल लॉट, 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर में लोगों को पैदल चलते हुए देखा। लड़कों में नहीं, लड़कियों को भी अपना बैग पीछे रखा होता है, दे आर मूविंग, दे आर गोइंग इन देयर, और कोई स्लो नहीं चलता वहां। और मेरे नबी पाक तेज चलते थे। आपको पता होगा, हम तो बड़े मानने वाले हैं ना नबी। हमारे नबी पाक ऐसे मुर्दारों तो नहीं चलते थे गरीबों की तरह, मिस्किनों, नो, रोज से चलते थे, तेज चलते थे। मुझे आप बताएं, आज आप लोग यहां से वहां तक स्टॉप पे ना कहते हैं ये तो दूर है, नजदीक है, फला है, टैक्सी नहीं आ रही है, कितने बातें सोचते हैं आप। तो आपके अंदर एनर्जी जो होना, एक हेल्दी होना, इस बात का सबूत है कि आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। सेहत भी आपकी ठीक होनी चाहिए। रिलेशन प्रॉस्पेरिटी, आपको कितने लोग जानते हैं, कितने विश करते हैं, आपका हल्का इबाब कैसा है, ये भी एक खुशहाली की निशानी है। आपको कितने लोग याद करते हैं, कितने सलाम करते हैं, कितने आपके बीमार होने पे लोग मैसेज करते हैं, कितने दुखी होते हैं लोग, कितने आपके साथ गम गुसार हैं आपके। ये सारी चीजें जो आपके ह्यूमन रिलेशन है, जो आपके रिश्तेदार हैं, वो कितना याद करते हैं आपको।
तो ये प्रॉस्पेरिटी के 7 एस्पेक्ट पे हम आपको लेक्चर देंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आप अच्छे वाइज हो के 20-25 कोर्सेज कर लेते हैं तो आपकी प्रॉस्पेरिटी के 7 एस्पेक्ट जो है इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे। इस जगह से आपको खुद फील होना शुरू हो जाएगा कि यस यार, मुझे जो है ना फील हो रहा है कि मेरे अंदर एनर्जी ज्यादा आ गई। मैं अपनी डाइट का बहुत ख्याल करूँ। सर ने कहा था कि ये खुराक इस्तेमाल करनी है, ये नाश्ता होना चाहिए, लंच होना चाहिए, और मैंने अमल किया तो देखे मेरी सेहत पे अच्छा असर पड़ा है, मेरे रिलेशन में बहुत अच्छा असर। सर के साथ ज्वाइन करने में, ग्रुप में आने के बाद मेरे फ्रेंड्स के हल्का हिमाम में मेरा बहुत फर्क पड़ गया। लोग मेरे दोस्त ज्यादा बनने शुरू हो गए, मेरा तो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम इस्तेमाल होना शुरू हो गया। कि सारे एस्पेक्ट जो है ना प्रॉस्पेरिटी का हिस्सा है। और ये जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जब आपका हल्का बात प्रॉस्पेरिटी के बढ़ता है तो आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। जब आपकी स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स का जब आपका जो है ना आपकी प्रोफेशनल नॉलेज आपका बढ़ता है तो आपकी इनकम बढ़ती है, आपके रिजल्ट ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं। जब आपके रिजल्ट आते हैं तो आपको खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। जब इंसान को हैप्पीनेस मिलती है तो इंसान को सेटिस्फेक्शन फील होती है। और जब ये तमाम चीजें 7 के 7 एस्पेक्ट जब आपके पैरेलल में आ जाते हैं, जब बराबर बराबर आके खड़ा हो जाते हैं, और जब आपको ये फील होता है कि यस आई एम हैप्पी, आपके अंदर से एक हैप्पीनेस आना शुरू हो जाती है, जिसे उर्दू में मुसरत बोलते हैं, खुशी। जो रूहानी खुशी जब आपको मिलना शुरू होती है तो देन यू कैन से आई एम सक्सेसफुल। ये जो बेचैनी है, याद रखिएगा, मेरा जुमला कोट कर लें, ये जो इंसान के अंदर बेचैनी है ना, कि ये इंसान को फील होता है कि ये नहीं आया, ये चीज नहीं मिली, ये नहीं रहा, आज मुझे ये काम है मेरा रह गया, ये पैसे मुझे नहीं मिले, मेरी तालीम अधूरी रह गई, मेरा ये रिलेशनशिप जो है ना अधूरा रह गया, मेरा ये रिलेशनशिप इस वजह से डैमेज हो गया, टूट गया, मेरा दोस्त नाराज हो गया, मेरी बीवी मुझसे नाराज, हस्बैंड नाराज हो गए, फैंसी नाराज। ये जो सारे मामलात है ना, इनमें अगर आप पैरेलल एक जना बैलेंस फील करते हैं, अगर आपके बैलेंस फील होता है कि नो आई एम हैप्पी, आई डिड माई बेस्ट, जब आप ये सोच कर रात को सोते हैं कि आई डिड माई बेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह, और पुरस्कुर नींद आ जाती है, तो यू कैन से यू आर सक्सेसफुल, यू कैन से यस दिस इज द हैप्पीनेस ऑफ लाइफ, दिस इज माई कैरियर। और अगर ये चीज नहीं है तो इट मीन देयर इज समथिंग रॉन्ग। फिर यू मस्ट चूज योर मेंटर, फिर आप अपने एक मेंटर को चूज कर लेना चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं मैं हूं। आप अपने किसी उस्ताद को, वालिदैन में से किसी को इस काबिल समझे जो आपकी हर बात में, हर मामले में आपकी हेल्प कर सके, आपको अच्छा मशवरा दे सके, तो बस फिर उसका आप पकड़ लें, वो आपको अपनी मंजिल पे पहुंचा देगा। तो प्रॉस्पेरिटी के 7 एस्पेक्ट इंशाल्लाह हम आपके यहाँ पर इस मरहले पे ठीक करेंगे और यहीं से आपको मिलेगा। इसके बाद लास्ट जो है वो चीज ये है कि जब इंसान के पास पैसा आ जाता है, इज्जत आ जाती है, ताल्लुकात बन जाते हैं, इज्जत दौलत शोहरत तमाम चीजें प्रॉस्पेरिटी में आपके पास आ जाती हैं, तो फिर इंसान के ज़हन में एकदम से रात को जब ये कह देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड माई बेस्ट, तो फिर एकदम से सवाल आता है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं अब इश्क के इम्तिहां और भी हैं, और उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं। देखो मिराज पे गए ना, आदमी का इम्तिहान है ना, उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि टूटा हुआ तारा मह कामिल न बन। ये उरूज आदम खाकी मेरी जो बुक का टाइटल है। फिर इंसान दोबारा सोचता है, एक नए तरीके से जब अपनी तैयारी करता है, और वो ये कहता है थैंक यू कि अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। मैं तो जो चाहूंगा आप लोगों में से मुझे 2 इंटेलिजेंट लोग नजर आ रहे हैं इस वक्त, जो इस मेयार पे आ चुके हैं कि मेरे विजडम को भी समझ चुके हैं, प्रॉस्पेरिटी के एस्पेक्ट को भी समझ चुके हैं। बाकी 5 लोगों से मैं दरखास्त करूंगा, तो चाहिए आपकी, अगर आप विजडम और प्रॉस्पेरिटी के एस्पेक्ट को समझने के बाद मुझे से शेक हैंड कर ये कहते हैं सर आई हैव फाउंड माई डेस्टिनेशन, तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, और आपका वो कामयाबी का इंतहा होगी उस दिन आप अपनी डेस्टिनेशन खुद तलाश कर लेंगे। उस दिन फिर मुझे गाइडलाइन देनी पड़ेगी, उस दिन आप कह सकेंगे यस सर नाउ आई हैव माई ओन डेस्टिनेशन। फिर आप हमारे किसी भी एक प्रोजेक्ट में, जो इस फाइल के अंदर आज 20 प्रोजेक्ट हमारे, उसका हम सब आप लोगों को व्हाट्सअप कर देंगे, उसमें फिर एक प्रोग्राम को ऐसा चूज कर लेंगे आप अपने लिए कि मुझे इसमें इंतहा पे जाना है, मुझे इस पे टॉप पे जाना है, मेरी पाकिस्तान में एक रिकग्निशन होगी इस हवाले से, इस प्रोजेक्ट के हवाले से, और फिर आप अपनी मंजिल बना के, और उसको डेस्टिनेशन मीन्स एनजीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पैसा तो यहाँ आ गया ना आपके पास, या सारा पैसा आ चुका है आपके पास, या वाइज आप हो चुके हैं, अब तो आपके पास दौलत इतनी आ गई कि अब आपने ये सोचना है कि मुझे अब इसको डेस्टिनेशन बना के अपने गांव में, अपने अजीजों और रिश्तेदारों का, अपने किसी दादा के नाम, अपने बाबा का, अपने नाना के नाम, अपनी अम्मी के नाम कोई हॉस्पिटल बनाना है, कोई लाइब्रेरी बनानी है, कोई कुआं खोद, व्हाटएवर, नन
प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फिर आप बनाएंगे, वो आपकी डेस्टिनेशन होगी, क्योंकि इसकी वजह से आपको जन्नत मिलेगी। ये याद रखना, जन्नत ये तो आपकी गर्ज है, ये आपकी जरूरत है, और ये आपने लौटाना है। अल्लाह जो आपको नवाजेगा यहाँ और यहाँ, ये दोनों चीजें इकट्ठी करके एनजीओ के थ्रू आपने अवामुन नास को दोबारा सब चीजें लौटा देनी है। तब आप हल्के होके, रिलैक्स होके, सेटिस्फेक्शन के साथ इस दुनिया से कूच करेंगे, और लास्ट पे आपके जुबान पे कलमा भी होगा और स्माइल होगी जाते हुए, वरना आप देख लें कैसे लोग मरते हैं। तो दिस इज द होल फिलॉसफी ऑफ लाइफ, दिस इज द होल ट्रेनिंग ऑफ लाइफ, दिस इज द होल सिलेबस ऑफ लाइफ। जो एज अ प्रोफेसर, एज अ ट्रैवलर मैंने पूरी जिंदगी में सीखा है, वो यही 3 अल्फाज है: विजडम, प्रॉस्पेरिटी, डेस्टिनेशन। नेक्स्ट सेकंड पोर्शन, सेकंड पार्ट ऑफ आवर टुडे सेशन इज, हम आपको क्या क्या देंगे और हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। दिस इज वेरी प्रोफेशनल क्वेश्चन कि वी विल गिव यू ऑल दीज थिंग्स। इसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं, और हम आपसे क्या चाहते हैं, ये इसका रिजल्ट होगा। और फिर लास्ट सेशन ये करेंगे कि आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा कि इसमें बार बार मैं 3 दफा लफ्ज का अभी अपनी बात में कह चुका हूं, 3 दफा, इंटेलिजेंट लोग जज कर गए हूं, 2 दफा और बोलूंगा, अभी पकड़ना है आपने मुझे। वी गिव यू ट्रेनिंग एंड स्किल्स फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस फॉर दिस। आप अपने किसी कजन को, किसी रिश्तेदार को, अजीज को भी इस सेक्शन में बिठा सकते हैं। जब भी हमारे पास जगह ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो ये मैं लाहौर में 100-200 लोगों से बात करता रहा हूँ, दुबई में 300-300 लोगों को ये लेक्चर दिए मैंने। ये फ्री ऑफ कास्ट जो है, ये लेक्चर आपने लेने हैं, ये आपको हम फ्री ऑफ कास्ट देंगे यहाँ पर। ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, इस बात के लिए कि आप लोग किसी उम्मीद से हमारे दरवाजे पे आए हो, हमारे ऑफिस में आए हो। ये तमाम कोर्सेज की हम आपसे कोई चार्जेस नहीं लेंगे। 20 कोर्सेज फ्री ऑफ कास्ट हम ऑफर करेंगे आपको। इन तमाम की आपको वीडियो बनाने की इजाजत है, रिकॉर्डिंग करने की इजाजत है, और आप अपने दोस्तों में, वीजों में, अपने रिश्तेदारों में ये आगे फॉरवर्ड करें, ताकि जो लोग यहाँ नहीं आ सकें वो इससे फायदा उठा सकें। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ये चलता रहेगा क्योंकि ऊपर काम हो रहा है। अच्छा, हम अगर आपको ट्रेनिंग दे दें, स्किल्स दे दें, और सर्टिफिकेट देने के बाद मियां साहब और मैं हम ये कह दें कि थैंक यू वेरी मच, आपका हमारे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा, तो आपको कैसा फील होगा? सर अच्छा फील होगा, और आगे भी यही ख्वाहिश होगी कि आगे भी आपको कंटिन्यू करें। वेरी गुड, जल्दी जल्दी बोले, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ शामिल हो जाएं, क्योंकि मैं इस रिजल्ट पे लाना चाह रहा हूं आपको। ये बहुत ही मैजिक वर्ड है टुडे जी। सर मुझे खुशी हुई कि मैंने कुछ सीखा और मैं आगे। अच्छा, कोशिश करें थोड़ा डिफरेंट जवाब देने की। अगर मैं हैप्पी, देखना मेरी निशानी ये कि अगर मैं हैप्पी होऊंगा ना जवाब से, तो मैं आगे नेक्स्ट बंदे से नहीं पूछूंगा। मुझे जवाब नहीं चाहिए ये ट्रेडिशनल कि मुझे खुशी होगी। मैं ट्रेनिंग तो आप लोग करते रहते हैं, आपको डिग्री मिली, उस दिन भी खुश थे आप, इससे आगे की बात करें। मेरा सवाल ये है कि अगर हम आपको ट्रेनिंग दे दें, स्किल्स दे दें इस प्लेटफॉर्म पे, और उसके बाद आपसे शेक हैंड करें, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे साथ हमें बर्दाश्त किया, हमारे वक्त को अच्छा इस्तेमाल किया, आप हमारे ऑफिस आए, और उसके बाद अल्लाह हाफिज, कैसा फील करेंगे आप? सर ज़्यादा पावर आएगी कि हम आपके साथ काम आपसे सीखें ज़्यादा। ओके, कुछ किसी हद तक ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपसे ट्रेनिंग लेंगे, और दूसरी बात ये है कि हम आपको कंटिन्यू करना चाहेंगे। अदरवाइज अगर हम आपको कंटिन्यू नहीं भी करेंगे, तो फिर भी हम किसी दूसरी जगह पे दी बस लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम आपसे कुछ लर्न करके जाएंगे। वेरी गुड, 75 50% आपने जवाब अच्छा, 75 पे आप पहुंच गए, मुझे 100 चाहिए। सर मुझे एक बहुत क्लियर विजन मिल जाएगा, मुझे डायरेक्शन मिलेगी कि अब मैं अलर्ट तो मेरे पास अगर लाइफ में कोई न्यू चैलेंजेस आते हैं, तो मैं आपकी जो नॉलेज है उसको यूटिलाइज करते हुए उन चैलेंजेस को सॉल्व करूं। वेरी गुड, व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? आई विल, ये तो विजन मिल गया, मैंने सर्टिफिकेट दे दिया, आई एम हैप्पी विद यू, उसके बाद में अपनी यू आर आल्सो हैप्पी विद मी, बट व्हाट नेक्स्ट? इससे सबसे बड़ा तो प्लस पॉइंट ये है कि मुझे प्रॉस्पेरिटीज के न्यू विजन मिलेंगे, एंड इफ आई अचीव प्रॉस्पेरिटी तो मुझे डेस्टिनेशन 99 पे जा सकते हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं अगले 2-3 सेशन में आप 100% जवाब दिया करेंगे जी। आपको मेरा सवाल समझ आया? आमिर, हाँ जी। सवाल बहुत सिंपल है कि मैंने आपको 20 कोर्सेज करवा दिए हैं, पूरा महीना आप मेरे साथ रहे, आज का सेशन लेने के बाद आपके दिल में बड़ी सब कल फिर सेशन लें, सुबह बड़े एनर्जी से आप आए, नई नई चीजें सीखें, सारी चीजें अपने वालिदैन से डिस्कस कर रहे हैं, पेरेंट्स से डिस्कस, दोस्तों को बता रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, फेसबुक पे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे, और आपके अंदर एनर्जी आ गई है, और ये 30 दिन जारी रहती है, और आखिरी दिन मैं कह देता हूँ थैंक यू वेरी मच, दिस इज योर सर्टिफिकेट, प्लीज गो। आई फील सक्सेसफुल मैन, Okay. एंड और कोशिश करूंगा कि जो मैंने हासिल किया है दूसरों तक पहुंचाऊं।
वेरी गुड, ठीक है, बट 99 पे रुके रहिए मेरे से आप मेरा फील करो, मेरा मैं आखिरी बात मैंने इनको क्या कही, थैंक यू वेरी मच। हाय हाय हाय, कभी फील करें इस बात को, उस्ताद जब आपको थैंक यू कहे, वो आपसे जान छुड़ाए, वो आपको कहे जाओ, This was the No, start. sir. मैं आपसे उस्ताद है, मैं आपको आपसे पूछूंगा अभी। सर वही बात होगी है ना कि जब You got my point? यस सर। आपने बहुत अच्छा वक्त गुजारा, महीने की आपकी एफर्ट, ये दिस इज द सर्टिफिकेट, प्लीज गो। It has some meaning. mean to say It has some meaning. आपका You don't deserve for our platform, you don't deserve for prosperity because you pass the time just for training. you are not able for that. Yes. And your mentor is not satisfied with you. अब क्लियर हो गया? जी मियां साहब, रोशन डालें। अगर मैं इनमें से किसी की जगह पर मैं होता, पहली बात है मैं कहता कि मैंने आपको छोड़कर नहीं जाता। ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि जो बिजनेस भी वो इल्म की तरह के बंदा सारी उम्र नई नई चीजें आती हैं, बंदा सीखता है। मैं कोशिश यही करता कि राव साहब से मैं वो रहता, इसका जवाब ये है टच रहता, और कि विजडम प्रॉस्पेरिटी के दरमियान 50-50 का डिस्टेंस है। ये थ्योरी है, सिर्फ 50% मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई, एक महीने के बाद खुदा हाफिज में कह रहा था मैं आपसे खुश नहीं हूँ, मैंने आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का अपने पार्ट प्रॉस्पेरिटी का हिस्सा नहीं बनाया, तो आप 50% नेमते लेके घर चले गए, तो आप बदकिस्मत हैं। किस बात पे खुशी मना रहे हैं, किस बात पे खुश हो रहे हैं, किस बात पे कह रहे हैं अच्छा सर ठीक है अल्लाह आपसे दोबारा कभी हुआ तो मिलेंगे? नो, मियां साहब वाली बात, सर जी आपने तो जोड़ दिया हमें, सर अब कैसे खुदा हाफिज कहेंगे सर? सर्टिफिकेट को लेके चूम के उल्टा रख देंगे सर, ये तो अभी खुदा है सितारों से आगे जहां, अभी तो बिस्मिल्लाह है सर, अभी तो आपने मुझे जो सिखाया, आपने जो मुझे अपना सिपाही बनाया, आपने जो मुझे कैप्टन बनाया, आपने मेरा जो विजन क्लियर किया, आपने मुझे जिंदगी की रमक सिखाई, आपने मुझे टाइम टेबल सिखाया, आपने मुझे टाइम मैनेजमेंट सिखाई, आपने मुझे वालिदैन का एहतराम सिखाया, मुझे आपने रिश्तेदारों से ताल्लुक बनाना सिखाया, मुझे आपने बिजनेस पर्सन बताया, आप सच छोड़ दूं आपको? अभी तो इम्प्लीमेंटेशन अभी तो मैंने सरकारी जॉब की है। सॉरी सर आपकी बात कर रहा हूँ। एक बंदे के साथ मैंने पूरा 1 साल अपनी जेब से पैसे लगाए हैं, अपनी सैलरी भी लगाई है, हैंड टू माउथ रहा हूँ, मगर सुकून बहुत रहा। मेरी जिंदगी में सुकून बहुत ज्यादा था। उस बंदे की मैंने वो आप वाली बात अदा देखी कि ये रिश्वत नहीं देता, मैंने कहा जी आपने भी आए से क्रॉस लगा दी कि रिश्वत नहीं देती सर। वो कहते हैं या किसी को अपना बना लो तो या किसी के हो जाओ। क्या बात है, इसमें बहुत बड़ी लॉजिक है, बहुत बड़ी बात है इसमें। ये इतनी बड़ी बात कर दी मियां साहब ने, मुझे नूर जहां का गाना याद आ गया। मैं पंजाबी भूल चुका हूँ, 20 साल से बाहर हूँ, लेकिन मुझे ये जुमला नहीं बोलता नूर जहां तक कि या अपना किसी ਨੂੰ कर ले या आप किसी ਦਾ हो दे लिया, या तो आपके अंदर इतने टैलेंट हो कि आपको कोई ना छोड़े, या फिर किसी को मेंटर मान के किसी को पकड़ लो, उस वक्त तक ना छोड़ो जब तक आप 100% आ गए। बिल्कुल। तो 50% आपके ट्रेनिंग की सारी चीजें, 50% प्रॉस्पेरिटी लेनी है, तब 100% बन के आप अपनी डेस्टिनेशन पा सकोगे ना। वो किसी भी एज के हिस्से में आ सकती है। जितने लकी होंगे, जितने इंटेलिजेंट होंगे, उतनी जल्दी आपको मिल जाएगी। सर कोई इंसान, सारे इंसान ही लकी है मेरी नजर में, वरना 60 साल तक भी लोगों को समझ नहीं आती लाइफ क्या है। मरने के वक्त तक जो है सीक्रेट समझ नहीं आता लाइफ। जिंदगी को सिर्फ समझना चाहिए। जो तो समझ गया ये 50% हमारा जो है ना, ये आपका ट्रेनिंग और सॉफ्ट स्किल है, और ये हम आपको देने के बाद अगर हमने आपको एक्सेप्ट कर लिया और आपको प्लेटफॉर्म दे दिया, आपको एक सीट मिल गई, आपको इस ऑफिस में कोई डेजिग्नेशन मिल गया, आपको इस ऑफिस का कोई बिजनेस कार्ड मिल गया, आप मेंटर्स ग्रुप के मेंटी बन गए, प्रॉपर मेंटी, तो फिर आपकी प्रॉस्पेरिटी का सफर ऐसा शुरू होगा कि 1 महीने के बाद आपके अकाउंट में वो पैसे नहीं होंगे जो अभी पड़े हैं। आपके पास जो है ना, आपकी लाइफ में तब्दीलियां नहीं आती 1 महीने में। आप ड्रेस चेंज नहीं करते अपना, आपका मोबाइल चेंज नहीं होता, आपका वे ऑफ थिंकिंग चेंज नहीं होता, आपका वे ऑफ टॉकिंग चेंज नहीं होता, तो फिर मेरे 1 महीने की मेंटरशिप का कोई फायदा नहीं है। तो उसकी निशानी याद रखना ये कि आप लोगों में से जो कंटिन्यू करते जाएंगे, आते रहेंगे लोग मेरे इसमें लेक्चर में, मीन्स कि वो सही चल रहे हैं, और जो मिस करते जाएंगे दे आर लूजर, आई एम नॉट लूजर, आई एम सॉरी टू से, आई एम नॉट लूजर। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो इस स्टेज पे हूं ना, डेस्टिनेशन अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड। My daughter had 2 gold medals, she is a doctor and she is married and she is doing lot of things for the humanity. She is rejecting the appointment letters
17 ग्रेड के लेटर उसके पास आ रहे हैं और वो मुझे दिखाती है, हंस के मुस्कुरा कहते हैं काश आपने ट्रेनिंग ना दी होती तो आज मैं ये लेटर लेके गिलगत गई होती है 17 ग्रेड का। शी इज फाइंडिंग हर ओन डेस्टिनेशन एट 26 एज, शी इज 26 नाउ, और वो ये दोनों क्रॉस करके यहाँ आ गई। My elder son is Daniel Roy in Qatar. He has got already both things. He is in the destiny. The third son, he is just FSC, and last week he opened his own e-commerce store. Just 18. He is here. आप लोगों को ये 50% जितना जल्दी मिल जाए फौरन प्रॉस्पेरिटी में आ जाओ। प्रॉस्पेरिटी में आने के बाद आपके 7 एस्पेक्ट ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आपको कभी जिंदगी में किसी के आगे हाथ ऐसे नहीं करना पड़ेगा, याद रखना मेरी बात। मियां साहब मुझसे कभी सैलरी नहीं मांगनी पड़ेगी, हम तो पकड़ेंगे आपको, भाई आपके अकाउंट नंबर दें, हम सैलरी ट्रांसफर करते हैं। कितनी अजीब बात है कि हमारे जितने लड़के जॉब्स के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के अंदर पहला सवाल क्या, सर मेरी तनख्वाह क्या होगी, सर मैंने की दोगे, मेरा हमेशा हाथ नहीं होता, ऐसा होता है ना। क्यों नहीं जा रहा? आप बोले ना किसी एमडी को, सर व्हाई यू टॉकिंग अबाउट सैलरी। अगर सर पूछे आपसे आप कितने तक, सर यू जज मी, डू यू नो व्हाट आई डू हियर इन दिस मंथ? कभी इंटरव्यू ऐसे सवाल किए आपने? यू मस्ट डू दिस, कभी करके तो देखो, हिला के रखो, किसी एमडी को हिलाओ, किसी को 10 जगह इंटरव्यू शो के लिए जाना चाहिए आपको, अपनी वर्थ जानने के लिए, अपनी मार्केट वैल्यू समझने के लिए। और कभी सीईओ से जाके पूछे सर क्या करते हैं आप लोग, बताएं ना जरा, बजाय इसके वो आपसे पूछे कि क्या किया है, क्या स्किल्स आपके, क्या आपके डाइट, वो 10 सवाल करता है ना आपसे, आप भी कभी करो सर टेल मी अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, टेल मी योर विजन, टेल मी योर मिशन। ये जब सवाल करेंगे तो समझ में आएगी यार ये बंदा अगर मुझसे लूज हो गया तो आई विल बी द लूजर। तो क्या आपकी जरूरत से ज्यादा आपको ऑफर होगी कि नहीं होगी? आपको सैलरी मांगनी पड़ेगी, आपके नाज नखरे उठाए जाएंगे नहीं उठाएंगे, आपको कहना पड़ेगा उसको कि सर मेरे लिए गाड़ी का अरेंज कर दे, मुझे ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम, मुझे मोबाइल की प्रॉब्लम, मुझे मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं, मेरे पास अपनी डिवाइस नहीं है। इस गुर्बत की सारी निशानियां ये जाहिर कर रही है कि आपके टीचर्स ने, आपके प्रोफेसरों ने आपको नहीं समझाया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड नॉलेज। आपकी यूनिवर्सिटी के टीचर ने बताया नहीं बताया, उसको खुद नहीं पता। एमबीए प्रोफेसर से मैं बैठा होता, एमबीए का जो प्रोफेसर जो टीचर्स बच्चों को पढ़ाता है, उससे मैंने पूछा सर कैन यू टेल मी अबाउट द 5 emerging टेक्नोलॉजी ऑफ टुडे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड जॉबियन माइंडेड। बिलीव मी वो नहीं एक्सप्लेन किया कर पाया, उसे खुद नहीं पता। क्यों? बिकॉज कि उसने तो जिंदगी में बिजनेस नहीं किया, वो कैसे बिजनेस को बताएगा आपको? वो तो जॉबियन है, वो तो जॉब कर रहा हो तो सैलरी ट्रांसफर होती है उसकी बैंक में, अकाउंट में जाती है, तो अपना टाइम पूरा कर रहा है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, वो आपको क्या बताएगा बिजनेस कैसे करना है? बिजनेस तो आपको वो बताएगा ना जो एंटरप्रेन्योर है, जिसने रिस्क लिया है, जिसने माँ का जेवर बेचा है, जिसने पैसे बेची है, जिसने जमीन बेची है और अपना कारोबार शुरू किया है। तो एंटरप्रेन्योर तो वो है ना, बिजनेसमैन तो वो है ना, उससे आप सीखेंगे ना। वो प्रोफेसर से क्या सीखेंगे? उससे ज्यादा नॉलेज तो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। आई गिव यू द गारंटी, किसी टॉपिक पे आप किसी प्रोफेसर को मेरे सामने बिठाएं और मैं उससे सवाल करता हूँ और वो ये साबित करेगा उसका नॉलेज गूगल से ज्यादा है, उसका नॉलेज यूट्यूब से ज्यादा है। और दिस इज द रीजन कि पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियां बंद हो गई थी, पूरी दुनिया के कॉलेजेस बंद है, स्कूल बंद है कोरोना की वजह से। क्या एजुकेशन स्टॉप हुई? एजुकेशन में कई गुना ज्यादा इजाफा हो गया। टॉप 10 दुनिया की जो कंपनी है ना, अमीर-तरीन कंपनियां, वो कई गुना बढ़ गई हैं, उनके रेवेन्यूज बढ़ गए हैं। अमेज़न ने इन 6 महीनों के अंदर 3 लाख नए एम्प्लॉइज हायर किए जो घर पे बैठ के काम कर रहे हैं। अमेज़न को लोगों पे यकीन है, लोगों का अमेज़न पे यकीन है, बीच में क्या है? जस्ट इंटरनेट। नो प्रोफेसर, नो यूनिवर्सिटी, नो कॉलेज। I didn't recommend my son to get the admission university. अभी जो FSC जिसने किया, मेरा बेटा जो बाहर से कतर से है, मैंने उसको किसी यूनिवर्सिटी नहीं भेजा, लेकिन वो यूनिवर्सिटी से ज्यादा घर पे पढ़ता है डेली, वो गाइडलाइन लेता है, वो अपनी प्रोफाइल खुद बना रहा है। तो ये जो प्रॉस्पेरिटी का सफर है आपका, ये है आपका टारगेट कि आप इस इदारे से इतना सीख लें कि आपको हम इस प्लेटफॉर्म पे ओके कर दें, आपको विजिटिंग कार्ड दे दें, आपको लेटर दे दें। जिस दिन आपको विजिटिंग कार्ड इस इदारे का मिल गया, इट मींस कि यू आर विद अस इन द सेकंड फेज। सेकंड फेज में आ गए आप, प्रॉस्पेरिटी के साइकिल में दाखिल हो गए। फिर आपको संभालना आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है। फिर अगर आप फेल होते हैं, आप अच्छा काम नहीं, तो ये आपकी नालायक, आपको भी ब्लेम नहीं करेंगे।
ये हमारे फिर मैनेजर्स की कमी है, मेंटर्स की कमी है, ये हमारे डायरेक्टर्स के अंदर कोई फॉल्ट है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फॉल्ट है। आपका फॉल्ट उस वक्त तक है जब तक लेटर नहीं मिलता, याद रखना। मैं एक नई चीज बता रहा हूं आपको, आपकी कमी, आपका फॉल्ट उस वक्त तक है जब तक आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है। अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए आप इस काबिल बने कि इदारा कहे यार, इदारा डर जाए कि ये चला ना जाए, इसकी हमें हमारे इदारे की जरूरत है। ये एस्पेक्ट जब आपका बनेगा तो देन यू कैन से कि आज का दिन आपने बहुत अच्छा गुजारा, आप बहुत काबिल इंटेलिजेंट, आपके हमें जरूरत है। द थर्ड थिंग इज इन्वेस्टमेंट। याद रखना इन्वेस्टमेंट 3 तरह की होती है। तो बताएगा आप में से 3 तरह में कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट है? 1 2 3। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट करता हूं, आप मेरे लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। याद ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की। टाइम इन इन्वेस्टमेंट। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे को समझ रहे हैं तो यू आर फुलिश। सिर्फ पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, याद रखना। सबसे कीमती जो चीज है ना आपकी लाइफ में वो है वक्त, टाइम। टाइम की इन्वेस्टमेंट करेंगे हम आपके साथ, बिकॉज टाइम इज लाइफ, दैट इज सो इंपॉर्टेंट। टाइम इज लाइफ एंड लाइफ इज मनी, मनी इज मीन्स लाइफ। कितना कनेक्शन बन रहा है इनका। तो अगर आप अपना वक्त इन्वेस्ट नहीं करते किसी के लिए तो आप इसका मतलब अपनी कीमती चीज को नहीं देना चाह रहे। लेकिन अगर आप किसी को अपना वक्त दे देते हैं, किसी इदारे को, किसी दोस्त को, अपने हस्बैंड को, वाइफ को, तो आपने तो जिंदगी दे दी ना उसको, इसकी कोई कीमत नहीं है। याद रखना, इसका नेम तो पैसा नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो टाइम। और दूसरी जो मेरे नजदीक इन्वेस्टमेंट है आपके लिए, मेरे लिए, मेरी आपके लिए, आपकी मेरे लिए, वो क्या है पता? वो फिर पैसा नहीं है, पैसा थर्ड पे आएगा। सेकंड जो है ना, टाइम के फौरन बाद है स्किल्स। अगर मैं अपने स्किल्स आप में ट्रांसफर नहीं करता तो मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया। मैंने जिंदगी में 50 साल सफर किया, दुनिया देखी, इतनी ट्रैवलिंग की, और अगर हम आपको अपने प्रॉपर्टी के स्किल्स, आपको ट्रैवल एंड टूरिज्म के स्किल्स, हम आपको अपने बिजनेस के स्किल्स, हम आपको वो तमाम फाइनेंशियल एस्पेक्ट जिससे आपने अमीर होना है, जिससे आपकी जिंदगी में तब्दीली आनी है, अगर वो स्किल्स हम आप में ट्रांसफर नहीं करते तो हम एज ए एम्प्लॉयर अपना हक अदा नहीं करते। ये दूसरी इन्वेस्टमेंट हम आपके साथ करेंगे, स्किल्स देंगे आपको। और तीसरी इन्वेस्टमेंट क्या है? करनी है एसेट्स। दैट इज अगेन नॉट मनी, इट इज अ पार्ट ऑफ एसेट्स, इज नॉट अ पार्ट ऑफ मनी, मनी इज अ पार्ट ऑफ एसेट्स। बैंक बैलेंस जो होता है ना वो पैसे होते हैं, लेकिन जो कारोबार होता है, जो ऑफिस होता है, जो जायदाद होती है, जो फैक्ट्री होती है, जो आपके रिसोर्सेज होते हैं, जो आपको पूरी सोसाइटी आपके वाले करेंगे, दैट इज आवर एसेट। सर उससे तो टाइम और स्किल भी एसेट में आ जाता है। जी, टाइम इज बिल्कुल, दैट इज आल्सो एसेट्स। यस, तो ये तीनों चीजें आपको, आपके साथ हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। मुझे बताइए, क्या आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके इवन रिलेटिव्स, आपका ब्लड रिलेशन भी ये तीनों चीजें देते हैं आपको? नहीं देते। क्यों? कि ये ऐन मुमकिन है कि उनको खुद जरूरत हो इन चीजों की। पॉसिबल है? Because we have education, but we haven't any knowledge. We have some sort of bogus knowledge or Exactly. some basic knowledge which give you the guideline कि I'm Muslim, I should pray, do this, but they don't teach you how to earn the money. पैसा कैसे कमाना है ये हमारी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता। How to earn money, how to earn reputation, how to earn the wealth, how to earn the prosperity, ये नहीं पढ़ाया जाता किसी यूनिवर्सिटी में। ये हम आपको देंगे। तीसरी और चौथी चीज क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, कि अगर आप अकेले हो, घर में बैठे हो और आपने कोई ऑफिस खोला हो तो आप कामयाब नहीं हो सकते। याद रखना, जब तक टीम वर्क नहीं होती, अभी जो हम बैठे हो ना, ये टीम बन के बैठे, छोटी सी टीम है, ये बेसिक फेस है इसका। ये इंशाल्लाह जो ही हम बहरिया में शिफ्ट हो जाएंगे तो आप देखिए 2 टीमें हो जाएंगी, एक टीम यहाँ बैठ के होगी, एक वहां बैठ के होगी, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, ये कंटिन्यू कराची तक हमने ऑफिस खोल लेने, ब्रांचेस या फ्रेंचाइज खोल लेंगे अपनी सारी। तो ये टीम वर्क में आपको क्या फायदा होगा कि आपका ग्रुप बनेगा। याद रखना, योर वर्थ इज नॉट मनी, योर नेटवर्थ इज योर नेटवर्क। जितना बड़ा नेटवर्क आपका होता है ना, उतनी आपकी वर्थ बढ़ती है। अगर आपका नेटवर्क ही 4-5 लोगों पे, एक आध कजन है जो आपको सुबह शाम गुड मॉर्निंग बोल देता है, एक आध गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है जो आपको मिस यू लव यू बोला, उसके बाद खत्म लाइफ। दिस इज नॉट योर वर्थ। यू मस्ट मेक योर बिग नेटवर्क, असातिज़ा का नेटवर्क हो, टीचर्स का हो, आपके बिजनेस का हो, रिलेशन का हो, सारे लोगों के साथ आपके कनेक्शन बने हो, डिफरेंट ग्रुप्स हो। तो ये आपका टीम वर्क में यहाँ फायदा होगा। हम आपको इतने बड़े बड़े ग्रुप्स में डालेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि आपको मैसेजेस आ रहे होंगे यूनान से, कतर से, यूके से,
यार हमें जो है ना बताओ बैरिया में प्लॉट लेना है, मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे यार ये टिकट बुक कर दे, मेरा यार ये एक फैमिली आ रही है ट्रैवल एंड टूरिज्म करें। इतने जबरदस्त लिंक आपके ये सब टीम वर्क से बनेंगे। एंड द लास्ट इज, जब तक हम इस कमरे में बैठे रहेंगे, याद रखना ये सारी थ्योरी रहेगी। जो ही मियां साहब आप में से 2 लड़कियों को लेंगे, चले चलते हैं ग्रीन वैली, आज आपको दिखाते हैं, मैं आपको लेता हूं, चले जी आज हम आपको जो है दूसरी। जब आप ट्रैवलिंग शुरू करते हैं, जब अपने घर से निकलते हैं, अपने शहर को देखते हैं, दूसरे शहर को देखते हैं, आप में से कितने लोग ऐसे जिसने पाकिस्तान के सारे शहर नहीं देखे हुए, तो दुनिया की तो बात की बात। तो इंशाअल्लाह ताला मियां साहब से मैं भरपूर संजीदगी के साथ ये डिस्कस करूंगा कि मार्च में, ये जो मार्च है, जनवरी में सारे दुनिया के हाथ नॉर्मल हो जाएंगे, मार्च में हम अपने ऑफिस से कम 15, 20, 25 लोगों को कंपनी के खर्चे पे आउट ऑफ द कंट्री विजिट पे लेके जाएंगे। ये आपका इनाम होगा, आपको रिवार्ड होगा कंपनी की तरफ से। बस हम बोल जाएंगे या बाकू जाएंगे। ये मैं बाकायदा इसमें ना इनकम में से कुछ हम पोर्शन रख दिया करेंगे बैंक में, जितनी हमारी महीने की इनकम होगी उसमें 2-3 लाख रुपए हम सेव करेंगे, ताकि आप सब लोगों को टिकट और वहां रहना, खाना पीना, होटल में स्टे आपका कंपनी की तरफ से फ्री हो, और ये आपका रिवार्ड होगा, आपका रिवार्ड होगा अच्छा काम करने का। तो ये 5 चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस वक्त जो मेन जो मेरी नजर में नहीं, ये इस वक्त आप लोगों को सक्सेस देने के लिए ये 5 चीजें इंशाल्लाह मेरी तरफ से प्रॉमिस आपके साथ एज अ प्रोफेसर, एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कि मैं आपको हेल्प करूंगा। अब आइए लास्ट सेशन की तरफ, कि आपकी तरफ से मुझे क्या आउटपुट मिलनी चाहिए। मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपका विजन आज से बनना शुरू हो जाए। अगर आप विजन नहीं बना रहे, आज से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, आपको पिक्चर, बिग पिक्चर नजर नहीं आ रही, तो प्लीज इस पर बार-बार डिस्कस करें, अपने कोलीग से पूछें, मुझसे व्हाट्सएप पे डिस्कस करें डेली, 1 घंटा, आधा घंटा, मेरे व्हाट्सएप 24 आवर चलता है, आप मुझसे डिस्कस करें, सब बताएं विजन क्या है। मैं अपना विजन क्लियर करना चाहूंगी। मैं सर अपना विजन जो मेरा लाइफ को मैंने ये बनाया था, मैं आज आपके लेक्चर लेने के बाद मेरे ज़हन में ये आई बात, क्या ये सही है सर, मैं अपनी लाइफ का ये विजन बना लूं, या आप लोगों ने डिस्कस करना ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। और दूसरी चीज क्या है कि मैं चाहूंगा पैशन के साथ आप हमें ज्वाइन करें, मुर्दा दिली से नहीं। पैशन की डेफिनेशन क्या होती है, जल्दी जल्दी बताएं सर। क्या अपने ख्वाहिश से है? ठीक है, ख्वाहिश छोटा लफ्ज है, क्यूरियोसिटी होती है। ख्वाहिश हर इंसान करता है। रोड पे अगर 10 मजदूर भी फिर ना, उन सब में ख्वाहिश है दोपहर में रोटी आज ना मुर्गी ना मिल जाए, उन बेचारों की ख्वाहिश यही है, ख्वाहिश नहीं है, क्यूरियोसिटी होती है, जैसे क्यूरियोसिटी, ख्वाहिश, तड़प जिसे बोलते हैं ना, तड़प, जुनून, जज्बा, यानी जिसमें आपको ये लगे कि बस मुझे अब जल्दी से ना अपनी चीजों को ठीक करना है, मुझे मौका अल्लाह ने दे दिया है, ये आपके गेट खोल दिया ना अल्लाह ने आपके लिए, दरवाजा खुल के आप आ गए, अंदर दाखिल हो गए। तो पैशन ये होता है कि तड़प, जस्तजू, सर जिसमें गेट और लॉस, यस, जिसमें इकबाल ने कहा है तड़पना, बहुत खूबसूरत शेर है, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गरम रखने का एक बहाना, शाहीन की खूबी होती है। वो कबूतर को जब देखता है ना, खूब जोर से उसके आगे से ऊपर जाता है, फिर तेजी से नीचे की तरफ आता है, आंखें उसके कबूतर बंद कर लेता है उसके खौफ से, लेकिन वो शाहीन उसको फिर दबोच लेता है। लेकिन वो जो एक्सरसाइज करता है ना, उसको अपने लहू को गरमाने के लिए, तो आपके अंदर की अपनी डेस्टिनेशन पाने के लिए एक पैशन होना चाहिए, एक जस्तजू होनी, एक खुशी होनी चाहिए अंदर से आपके अंदर, कि मुझे जो है ये सब इन चीज़ों को प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी लेके आना है, इन चीज़ों को अचीव करना है। ऑनेस्टी, आपने बचपन से सुना होगा, क्लासों में पढ़ा होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सुना है ना? क्या क्या मीनिंग होते हैं इसके? किसी के साथ सर, यानी कि साथ, किसी के साथ नहीं, अपने साथ बोलो, बाकी याद रखना सबसे पहले इंसान अपने साथ बेईमान होता है। सर इसके लिए बेस्ट ये ऑनेस्टी मैं मेरे साथ नहीं कह रहा, ये आपका रोल है, आपने अपने साथ ऑनेस्ट हो जाना आज से, याद रखना। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, अपने आप के बारे में अपने ज़मीर से पूछना है, सर तो नहीं है, सर तो बाहर बैठे मीटिंग कर रहे हैं, मैं मोबाइल पे क्या खेल रहा हूँ, सर ने मुझे क्या टास्क दिया था, मैंने कितनी दफा सर के पास जाके पूछा, सर ये मुझे नहीं आता, मुझे बताएं, ना कि आप इंतजार करो सर आके बताएंगे आपको। अजीब सी बात है ना, रवैया है ना, तो अपने रवैये को आपने चेंज करना है, और वो रवैया ये है कि अपने साथ ऑनेस्ट हो जाए। और याद रखना, ऑनेस्टी इज नॉट ओनली द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द ओनली पॉलिसी। ये जरा जुमले को गौर करें, बेस्ट तो वो होती है ना कि बहुत सारी चीजों के दरमियान, नो, ऑनेस्टी इज द ओनली पॉलिसी। अगर आप ये डाउट कर लेंगे कि मैंने तो बस ऑनेस्ट रहना, मैंने सच बोलना है सर से, तो आपको नहीं अंदाजा, अगर असली सही सर है ना, तो उसके दिल में जो आपकी इज्जत आएगी ना, जो रिस्पेक्ट आएगी, वो नहीं छोड़ेगा आपको, शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ऑनेस्ट हो जाए बस, प्रोफेशनलिज्म लाए अपने अंदर, जो काम आपको दिया जाएगा
मैं सबको एक जैसा काम नहीं दूंगा, मैं 1 by 1 आप सब लोगों का अलग अलग इंटरव्यू लूंगा, मैं आपका विजन स्टैब्लिश करूंगा। मैं एक मेरे पास फॉर्म बना हुआ है, उस फॉर्म से आपकी लाइफ का भी हम प्लान करेंगे। एक हमने फॉर्म डिजाइन किया है जिसको मास्टर लाइफ प्लान बोलता हूं मैं, और वो फॉर्म आप मेरे साथ बैठ के प्रॉमिस करेंगे, उसे फिल करेंगे, और मैं उसी पे साइन करूंगा और आप भी उस पे साइन करेंगे। और उस फॉर्म में जो चीजें लिखी हुई हैं वो बहुत ईमानदारी से आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे। ये फॉर्म, ये देखिए मास्टर लाइफ प्लान, इसमें बड़ी ईमानदारी से बताया सर आप मेरे फैमिली गोल्स ये हैं, मैंने सर 7 छोटे बहन भाई की शादी करनी है, सर मुझे फैमिली अम्मी अब्बू गुमराह कराना है, ये फैमिली गोल्स लिखेंगे आप। उसके बाद आप अपने गोल्स लिखेंगे, हेल्थ के गोल, फाइनेंशियल गोल, ये सारे के सारे गोल्स लिख के यहाँ पर साइन करेंगे, मैं साइन करूंगा, और फिर ये जो जो अचीव करते जाएंगे हम लिखते जाएंगे, हम टिक करेंगे। और ये एनुअल होगा, एनुअली, ये 1 साल का प्रोग्राम है पूरा। ये बाकायदा कोर्स है, इसमें आपको करना भी सिखाऊंगा, और लोगों को करवाना भी सिखाएंगे हम आपको। मुझे मास्टर ट्रेनर भी चाहिए आप में से, जो लोग मुझे असिस्ट करें, जब मैं ना हो तो मेरी जगह लेक्चर दे। तो प्रोफेशनलिज्म, जो काम आपका होगा उसको बहुत अच्छी तरह से करना है आपने। और लास्ट आपसे मैं चाहूंगा रिजल्ट्स, जो काम दिया जाए आप खुद शीट बना के मुझे देंगे, सर दिस इज माय रिजल्ट, दिस इज माय आउटपुट, ये 10 लोगों का काम आपने मुझे दिया, मैंने 10 को कॉल की, ये रिजल्ट आया, ये उन्होंने बोला, ये सर मेरा काम था, मैंने वेब डिजाइनिंग कर दी है, ये मैंने कर दिया, ये मैं नहीं कर सका। आप डेली आके मुझे 5 बजे छुट्टी करने से पहले बताएं, सर ये मेरा आज के पूरे दिन की समरी है, ये मैंने काम करना था, ये मैं नहीं कर पाया, नहीं कर पाई, ये मैं कल करूंगी, ये मैं घर जाके कर लूंगी, ये दिस इज द रिजल्ट। डेली बेसिस पर याद रखना अपने रिजल्ट्स देने हैं, बिकॉज कि हम अशरफुल मखलूकात, अल्लाह ताला ने हमें डेली बेसिस पे प्रोग्रेस और करियर की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया है। देखिए पौधा जो होता है ना, उसको भी अगर पानी और धूप मिलती है नेचर की तरफ से, वो भी बड़ा हो रहा है, जबकि बेचारा कितना पाबंद है कि वो कदम उसके जुड़े हुए, जड़ें बंधी हुई है, आप लोग तो आजाद हैं। तो परिंदों से भी गए गुजरे हम लोग कि वो तो पल बढ़ के बड़ा होकर फलदार दरख्त बन के और सायादार दरख्त, और वो इंसानियत को फायदा पहुंचाना शुरू कर। आप और हम 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल 50 साल उम्रें गुजरती जा रही है, और वही बैंक बैलेंस, वही खटारा मोटरसाइकिल, वही पुराना माँ बाप का दिया हुआ घर। तो कहाँ है भैया शुरू का, कहाँ है सोच, कहाँ है मेहनत, कहाँ है आपका स्किल्स, कहाँ है आपका दिमाग, कहाँ आपकी टोर है, कहाँ आप लोगों को इंप्रेशन देते फिर रहे हैं ड्रेसेस पहन के, जी मैं ब्रांड पहनता हूँ, ये करता हूँ, मेरे पास मोबाइल है, सब फ्रॉड है। तरक्की तो ये है कि आपके सारे एस्पेक्ट बढ़ रहे हैं और आप प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं, आपके रिजल्ट शो कर रहे हैं, आपके घर वाले हर साल देख रहे हैं कि आपके कजन हर साल महसूस कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में चेंज आ रही है। दिस इज द रिजल्ट। आइए जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि जब हम ये देंगे आपको और आप ये देंगे तो क्या होगा, ये होगा। दिस इज माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। मैंने अपनी स्पीच में, अपने 35 मिनट्स के लेक्चर में, 45 पे हम खत्म करेंगे, 45 मिनट से ज्यादा मेरा लेक्चर कभी नहीं होता। इन 10 मिनट में हम ये जज करने की कोशिश करेंगे कि आप 6 लोगों में से ये सही जवाब किसने दिया है, जिसके लिए मैंने एक प्राइज का अनाउंस किया हुआ है, और वो प्राइज का अनाउंस अभी सबके सामने मैं करूंगा, और हम उसको जो है मुबारकबाद देंगे कि वो हमारे इदारे में ये विन किया उसने। दोबारा से सोच लें कि हम आपको जब ट्रेनिंग देंगे, स्किल्स देंगे, प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा, आपके साथ हम इन्वेस्ट करेंगे टाइम की, स्किल्स की, आपको हम एसेट्स में शामिल करेंगे, आपके सामने कोई पर्दा नहीं होगा, तमाम प्रोजेक्ट आपके सामने ओपन हो जाएंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट एसेट्स होंगे, और उसके बाद हम आपको टूर्स पे ले जाना शुरू कर देंगे, आपका विजन बनेगा, आपको प्रैक्टिकल, आपको विजन इज द सीइंग इज द बिलीविंग सिस्टम, यानी जब आप आंखों से कोई चीज देखते हैं ना तो उससे बिलीफ सिस्टम बढ़ता है आपको यकीन आएगा, हम आपको सोसाइटी दिखाएंगे, हम आपको अपने एसेट्स दिखाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम आपको लाहौर लेके जाएंगे, हम आपको अपनी फैक्ट्री दिखाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना जब आपको मिलेंगी, और मिलने के बाद आपका विजन क्लियर हो जाएगा, आप पैशन के साथ आ रहे होंगे, आपको यहाँ पर ऑनेस्टी के साथ काम करने की आदत बन जाएगी, आप प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा आपके अंदर, और रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, तो क्या होगा, इसमें एक लफ्ज सिर्फ एक बोलना है, जो बोलता जाएगा मैं यहाँ लिखता जाऊंगा, और फिर हम इसमें से क्रॉस कर देंगे, ये सही जवाब ये है। सक्सेस। आगे बोलने जी। डेस्टिनेशन पा लेंगे। एक लफ्ज बोलना है, डेस्टिनेशन मैंने लिख लिया, आगे क्या बोला था? डेस्टिनेशन मिल जाएगी हमें। डेस्टिनेशन लिख जी, वन वर्ड, डिटर्मिनेशन,
सर मुझे जहाँ तक लगता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हम अपनी वर्थ को जानेंगे अपनी इस वीडियो में। मैंने एक दफा भी नहीं कहा, लेकिन मैंने इसको डिफाइन बहुत दफा किया अपनी स्पीच में। यानी ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे ही मेरा लेक्चर था एक्चुअली देखा जाए, लेकिन मैंने ये लफ्ज मेरे मुंह से, मैं गारंटी कर रहा हूँ मेरे मुंह से 3 से 4 दफा लफ्ज निकला है, और वो यहाँ अगर आप लिख देंगे तो आप कहेंगे कि ये इस सारे की समरी जो है ना सर आपने लिख दी। गोल्स अचीवमेंट हो जाएगी। गोल्स अचीवमेंट मैंने बोला तो नहीं, लेकिन चलिए मैं आपकी तरफ से लिख देता हूँ गोल्स। इसको मिटाना नहीं, हम इसको इस पे थोड़ी सी कल भी बात करेंगे। हो सकता है आज रात आपके ज़हन में अल्लाह ताला भेज दे, फरिश्ता भेज दे, कोई इल्हाम हो जाए। सर जब बंदा देखेगा कि उसके पास इतनी चीजें आ गई हैं, हाँ। तो फिर वो अपनी एक एनजीओ बनाएगा ताकि हाँ। दूसरों को फायदा मिले। ठीक है, एनजीओ लिख देता हूँ। अच्छा चले, मैं आपको और इशारा करता हूँ, हो सकता है आज ही पहुंच जाए, वरना मैं कल तक के लिए इसको डिले कर दूंगा। मेरे दिल में ख्वाहिश है कि आज मैं प्राइज देता किसी को, लेकिन आप ट्रेनिंग मिली, स्किल्स मिले आपको। देखें, हर बात जो मैंने लिखी है ना उससे अगली स्टेज पे गौर करेंगे ना तो आप पहुंच जाएंगे। अगली बात, आप में से लोगों के कुछ जवाब ऐसे जो इसी लेक्चर के अंदर घूम रहे हैं, भाई मैं तो यहाँ आ गया हूँ, ये देखो सब चीजों को कवर करके, और मैं तो यहाँ खड़ा हूँ इस वक्त। ये देख रहे हैं सारा सर्कल खत्म होकर इधर आ गया, सब चीजें इस तरफ रुक कर रही हैं। तो क्या है, ट्रेनिंग हो चुकी है, रिजल्ट्स आ चुके हैं, प्लेटफॉर्म आपको मिल गया, इन्वेस्टमेंट हमने आपके साथ कर दिया, आपने मेरे साथ ये तीनों इन्वेस्टमेंट हो गई, टीम वर्क में आप काम करने लगे, टूर्स भी आप कराए, विजन क्लियर हो गया, पैशन आ चुका, ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, प्रोफेशनलिज्म भी आ गया, रिजल्ट्स आ गए, यू आर एट द बेड एट द मिडनाइट। अब आपका ये काम है कि आप डिलीवर करें दूसरों को कोई चीज। हाँ डेफिनेटली, अपनी डेस्टिनेशन तो आपने चुन ली अपनी, या चुन लेंगे आप, मेरी वेरी गुड रखना है। हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, वेरी गुड, ये भी अच्छा लफ्ज मैं लिख देता हूँ। वैसे बड़ा करीब है, जो लास्ट में बोला ना मेरे वाले लफ्ज के करीब है, लेकिन वो लफ्ज आप सुनेंगे तो एकदम से आप यूं कर देंगे, वाओ आई डिड माय अगर बेस्ट। आप कहते हैं मैं लिख देता हूँ, और आप कल तक का टाइम लेना चाहते तो मैं देता है जुलाई। सर लाइफ का गोल सेट हो गया ना फाइनल। जब रात को आप सोएंगे, जब बेड पे आप होंगे और सारे काम ठीक हो रहे, आज की बात नहीं, आज नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है, याद रखना, क्योंकि इतने मरे 1 महीना इसमें लगेगा आपको। 1 month you need for this, at least 1 month more for the prosperity। 2 महीने के बाद रिजल्ट पे आप आके एक जगह जाके ये फील करेंगे कि सर ने जो कहा था बैंक में इतने पैसे होंगे, आ गए, अरे भाई आ गए पैसे, एकदम से आपके ऊपर टिक करके मैसेज आया, मियां साहब ने मैसेज किया सैलरी ट्रांसफर, कैसा फील होगा? आपने अपने दोस्तों को बताया, आपने मेल किया, आपने सोशल मीडिया पे कैंपेन में डाला, और सारे दोस्त पूछे अरे भाई ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी है प्रोफेसर आपकी, वेरी गुड, तनख्वाह मिली, पैसे मिले, और आप ये कहते हैं मोर देन सैलरी, आप क्या कहते हो 2 महीने के बाद? मोर देन सैलरी, दिस इज द थिंग, तो जस्टिस मुझे मिल गई, एंड टुडे आई एम, ये लफ्ज याद रखना, टुडे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सैटिस्फाइड। जब वो इत्मीनान का सांस लेंगे ना, जब सुकून लेंगे ना, तो उसके अंदर एकदम से आपको पीछे नजर आएगा विजन, पीछे नजर आएगी सारी ट्रेनिंग, पीछे नजर आएगा प्रैक्टिकल सर ने प्रॉस्पेरस हमें कर दिया, और वो पहला स्टेप होगा जिसपे आप डेस्टिनेशन के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। उस दिन सेटिस्फेक्शन जरूरी है ना, मैंने बीच में कई दफा बोला था, सेटिस्फेक्शन जो जिसमें आपको मुसर्रत, रूहानी मुसर्रत फील होने लगेगी, आपको ये फील होगा यस आई डिड माय जॉब, मैंने मुझे सर ने जो मुझसे उम्मीद रखी थी ना वो मैंने करके दिखाया है, तो मुझे सैलरी मिली, याद रखना, रिजल्ट्स मिले, सैलरी मिली मुझे, टुडे आई एम अल्हम्दुलिल्लाह सैटिस्फाइड। जी पूछिए, आई एम ओवर हियर, मेरा लेक्चर खत्म हो गया, अब आप लोग क्वेश्चन आंसर के लिए 5 मिनट में दे रहा हूँ। इस लेक्चर से रिलेटेड या इस लेक्चर के अलावा भी आपके ज़हन में कोई भी सवाल करें, क्योंकि सवाल से बात ये है कि आप जिंदा हैं, जाग रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आपका IQ लेवल अच्छा है, आप सवाल से सवाल पैदा कर रहे हैं। आई लाइक द क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन से ही याद रखना जो है ना ये फैकल्टीज बनी है सारी दुनिया में, जितने भी उलूम ने जन्म लिया है ना क्वेश्चन से लिया। क्वेश्चन अगर आप नहीं करते, इट हैज 2 मीनिंग, यू डोंट हैव इंटरेस्ट or you have all the understanding, you don't need this lecture. So my question is, what next to the satisfaction? Very good question. आपके दरमियान की है ना, सोचा था ना उसने कि what next, बहुत जबरदस्त सवाल किया। मुझे खुशी है कि आप इंटेलेक्चुअल लेवल पे उस जगह खड़ी हैं इस वक्त। मैं मुंह पे तारीफ इसलिए करता हूँ
कि लोग उस अपने टैलेंट को, अपने उस चीज़ को समझ के आगे बढ़ाएं, ना कि उस पर इतरा आ जाए मगरूर। ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपको मुँह पे तारीफ इसलिए करूँ कि आप इंटेलेक्चुअल लेवल पे हैं और आप उस लेवल पे हैं कि जिससे मैं समझता हूँ कि आपकी स्पीड जो है ना बाकी लोगों की इसमें बहुत ज़्यादा है समझने की, सब सीखने की। नेक्स्ट लेवल ऑफ द सेटिस्फैक्शन इज टू डिलीवर द सेम थिंग to masses, not only 1, 2, 3, 4 cousins,